आदाब नाज़रीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सबका खैर मक़दम है। जनूबी हिंदुस्तान वानमबड़ी में आज शानदार तरीक़े से उर्दू जुलूस निकाला गया। 25वां उर्दू किताब मेला यहाँ पे आगाज़ हो चुका है। 3 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक 2023 इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड वानमबड़ी। आइए जानते हैं इसकी तफसीलात। वेलकम टू वानीबड़ी। तो जनूबी हिंदुस्तान के सतह मुस्तफा दक्कन पर दरियाए फालार के किनारे मशरकी और मगरबी घाटों के दरमियान गुजरती हुई पहाड़ी सिलसिले के दरमियान सरसब्ज शादाब तिरावड़ी सरजमीन पर चमनिस्तान उर्दू वानमबड़ी में आप सबका इस्तकबाल। आज हमारे दरमियान मेहमानों की पूरी एक टीम मौजूद है, उनके हाथों आज इस नुमाइश का इफ्तिताह होगा। सबसे पहले हमारे दरमियान हमारे शहर के मेंबर असेंबली सिंधी कुमार जी, मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ।
ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಚಟ್ಟಮಂಡಲಸಿ ಉಡುಪಿನ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. और इसके बाद आज के हमारे इस क्लास इजलास में हमारे उस्ताद मुकर्रम प्रोफेसर मुजफ्फर शहमेरी साहब जो हमारे इस कार्य से भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं, और इसके बाद करनूल की अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी होकर वो रिटायर हुए हैं, और उन्होंने भी कोई खुशखबरी सुनाई. 74 ಸ್ಟಾಲ್ ಇದು इसके बाद इसी पीरियड के एक दूसरे यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से जाएंगे. खाली नहीं ऐसे ही तो काफ जिसके पास जो बना लेगा उसको पॉइंट ये नीचे पॉइंट देंगे उसके। फिर कुछ देर फिर इसमें ये ऐसे लगता रहेगा, जितना कम होगा ये इसमें लगता रहेगा। That in Islamia College the Urdu Kitab Mela is being organized, and also we thank Government of India for taking the initiative in this, and the Muslim Educational Society is organizing,
there are a few places where Muslims have taken the initiative in education. Vaniyambadi is one among them. Of course, in Tamil Nadu, the northern districts like North Arcot, Madras, Chennai, etc., they have taken the lead in educational institution. And I am happy that Islamia College is hosting this, which has completed 100 years. Very rarely a college completes 100 years. And I'm happy that the guest has come from all the way from Delhi. And this is a place, Vaniyambadi is a historical place. In fact, your Hyder Ali and Tipu Sultan stayed here for a few days. And the first battle of Tipu Sultan was in Vaniyambadi because his father was sick. He went to the battle at the age of 17. So this is a very historical place. And I am happy that this important function is being held here to encourage learning of Urdu, because Urdu is a very important language spoken in more than 10-15 countries of the world. According to figures, about 23 crores of people are speaking Urdu. Of course, India is one among the major population which speaks Urdu. We have more than 7-8 states where it is recognized as a second language. It is one among the 22 languages under the Constitution of India and the 8th schedule of the Constitution. And in fact, once Urdu was proposed in the name of Hindustani as the official language of India. It's all old history, but somehow it was not possible. With the casting vote of Rajendra Prasad, Hindi became the official language because it was divided into 50-50. That's the kind of language, and now it is the official language of Pakistan along with English, and Urdu is used in many parts. It's not only language of Muslims, even Hindus speak Urdu. For example, I had a friend from Hyderabad who was a Reddy by caste. He used to speak always in Urdu in Parliament. Once I asked him, "You are a Reddy, why can't you talk in Telugu?" He said, "My Urdu is better than my Telugu." That's how the influence of Urdu was there throughout the country. And in Tamil Nadu, the northern districts, we have an advantage because many of the colleges started like Islamia College, Abdul Hakim College, New College, SIET, etc. But still, this community has made progress in education. Of course, at the all India level, the community is very backward. Comparatively, the southern states are doing well, but even then, it has to take up education. Only then the poor and the middle class can come up. And I hope this Kitab Mela will be a part of that message that the Muslim community should have more education, concentrate more on education. पूरे आवाम को और ख़ास तौर पे जो ये रियासत है, स्टेट है तमिलनाडु के तमाम लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो मोहब्बत की ज़बान है। उर्दू ज़बान के अंदर लिंक लैंग्वेज बनाने की या बनने की पूरी कुव्वत है, ताकत है इसके अंदर। उर्दू एक ऐसी ज़बान है कि कम व बेश हिंदुस्तान के हर खित्ते में बोली जाती है और समझी जाती है। और जैसा कि हमारे वाइस चांसलर साहब ने कहा कि जो नॉन उर्दू वाले हैं वो भी उर्दू बोलते हैं और बोलने की कोशिश करते हैं। तो मैं तमाम यहाँ के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप उर्दू सीखें, और जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं तमिलनाडु में जहाँ उर्दू की पढ़ाई नहीं होती है, उनके वाइस चांसलर्स को ये मैं कहना चाहता हूँ कि हम उनके यूनिवर्सिटी में सेंटर देंगे उर्दू का। वो सेंटर हमारे सेंटर को चलाएं, मैनेज करें, और जो उर्दू बिल्कुल नहीं जानते हैं उन्हें उर्दू वो सिखाएं, ताकि उर्दू के ज़रिए हम पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मोहब्बत का पैगाम दे सकें और हम तमाम दुनिया के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकें और एक साथ जोड़ कर रख सकें।
मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ। आज का जो किताब मेला हो रहा है 9 दिनों तक ये जारी रहेगा, इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत क्या होगी? इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि यहाँ पे लगातार 9 दिनों तक हम कल्चरल और लिटरेरी प्रोग्राम करवा रहे हैं, जिसमें इस इलाके के जितने स्कूल्स हैं उस स्कूल्स के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और उन्हें हम किताबों के तई मोहब्बत करने का जज्बा सिखाएंगे और उनके अंदर हम ये पैगाम देंगे कि उन्हें इंटरनेट मोबाइल पे जो खुराफात हम बच्चे करते रहते हैं उसे छोड़ करके किताबों को पढ़ें, किताबों से दिलचस्पी पैदा करें अपने अंदर, इसलिए कि किताब सबसे अच्छा साथी है और वक्त बिताने के लिए भी किताब से बेहतर कोई और चीज़ नहीं है। कौमी काउंसिल का ये 25वां किताब मेला है, क्या पहली मर्तबा तमिलनाडु में किताब मेला हो रहा है? जी हाँ, पहली मर्तबा तमिलनाडु में हमने ये किताब मेला किया है और वैनम बाड़ी का इंतखाब हमने इसलिए किया कि वैनम बाड़ी के जो लोग हैं वो काफ़ी डायनेमिक हैं, उनके अंदर उर्दू के तई और तालीम के तई जो जोश व खरोश है वो बहुत ज़्यादा है और मैं ये चाहता हूँ कि वैनम बाड़ी से ही उर्दू की खुशबू पूरे तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैले और यहाँ के लोग उर्दू की खुशबू को सारी दुनिया में फैलाने के लिए इनके अंदर काफ़ी भरपूर जज्बा है और इस उम्मीद के साथ हमने यहाँ किया है कि ये लोग उर्दू के वो पूरी दुनिया में यहीं से फैलाएंगे। की कमी की वजह से जैसे हुकूमत से पोस्टिंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हम बच्चे आते हैं लेकिन वहाँ पर टीचर या उस्ताद नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो लिहाजा उसके लिए भी कोशिश जारी है। जो तमिलनाडु स्टेट उर्दू अकेडमी की जानिब से कई कारपोरेशन स्कूल जो चेन्नई के अंदर हैं वो उन्होंने उसको अडाप्ट किया है और वहाँ पर उर्दू सिखाई जा रही है। तो लिहाजा हम कोशिश कर रहे हैं कि उर्दू को आम किया जाए और ख़ुसूसन जैसे स्कूल्स हैं वहाँ पर और हमारे जितने भी इदारे हैं वहाँ पर उर्दू बोलचाल शुरू होनी चाहिए। जैसे कि अब अंग्रेज़ी को आजकल फैशन समझते हैं कि अंग्रेज़ी के अल्फाज उर्दू के साथ मिलाकर बात करेंगे तो वो अच्छी ज़बान समझी जाती है। मैं तो उसका कायल नहीं हूँ। हम उर्दू को उर्दू से ही बोलें, उर्दू के अल्फाज ही इस्तेमाल करें, ये नहीं कि उर्दू के साथ अंग्रेज़ी इस्तेमाल करें। तो बहरहाल मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने ख़ासकर नौनिहालों को, जो बच्चे जो आने वाली नस्ल है उनको उर्दू पढ़ाई जाए, जो स्कूलों को इसको मजबूत किया जाए। जब तक कि आप आने वाले बच्चों को आप नौनिहालों को आप उर्दू से ये नहीं करेंगे तो उसके बाद उर्दू जो है ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। कि इलाक़ाई ज़बान के साथ उर्दू की आप कैसे तरक्की करेंगे। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये उर्दू की ख़ासियत है, उसकी खुसूसियत है कि वो किसी भी इलाक़ाई ज़बान के साथ बड़ा दोस्ताना माहौल में बड़ी ही मोहब्बत के साथ, मेल जोल के साथ वो आगे बढ़ती है। ये ख़ास बात है उर्दू की। और उर्दू की ख़ास बात ये भी है कि वो कभी किसी ज़बान की मुखालिफत उसने नहीं की और उसके साथ साथ चलती रही। तो कोई मुकामी ज़बान हो, कोई इलाक़ाई ज़बान हो। रहा ये सवाल के तमिलनाडु में, देखिए कि सबसे पहली बात तो मैं कौमी काउंसिल फ़रोग़ उर्दू ज़बान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये मेला यहाँ लगाया, तमिलनाडु में लगाया, जिसकी बहुत बड़ी ज़रूरत थी। और ख़ास तौर पर वानमबड़ी को मैंने हमेशा तमिलनाडु का लखनऊ कहा है और उसके कई असबाब हैं। यहाँ पर बहुत शोरा गुजरे हैं। यहाँ हमने सुना है कि जिगर मुरादाबादी साहब भी तशरीफ़ लाए थे और जब यहाँ इकबाल सदी तक़रीबात मनाई गई थी 1977-78 में, हिंदुस्तान का कोई ऐसा प्रोफेसर ना रहा होगा जिसने उस सहरोज़ा इकबाल सदी तक़रीबात में हिस्सा ना लिया हो। जगन्नाथ आज़ाद कश्मीर से आए थे तो तिरुपति से प्रोफेसर सुलेमान अत्तरजावी साहब भी तो एक मकाम रखता है, तो एक मुकाम है। अब एक बात ये भी है कि ज़माने के साथ साथ क़दरें बदलती गई हैं, ज़माने के साथ साथ, और ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी और डिजिटल ज़िंदगी की वजह से बहुत कुछ कम हो रहा है। मगर हमें ये पैगाम देना चाहिए। காலேஜுக்கு ஆப்போசிட்ல ஒரு கிரவுண்ட் இருக்கு,
ஸோ இதெல்லாமே நாங்கள் ஒன்றா போனால் தான் ஸோ மிங்கிள் ஆக முடியும். ஈவன் உருது எனக்கு உருது தெரியாது, இன்றைக்கி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் உருது தெரியலன்னு. ஸோ நாங்கள் மிங்கிள் ஆகி ஒன்றா இருந்தால் தானே தெரியும். ஸோ இவங்க டிவைட் பண்ணியே வச்சுருக்கிறாங்க. ஸோ இவர் சார் கேட்குற மாதிரி இப்போ இருக்கிற இந்த கவர்மெண்ட் முஸ்லீம்ஸ்க்காக இருக்கட்டும், ஈவன் அவங்க லாங்குவேஜ் உருதுக்காக இருக்கட்டும், அவங்க லாங்குவேஜில் இப்போ நானே ஃபீல் பண்ணுறேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி எதுவும் செய்கிற மாதிரி தெரியல, உண்மையாகவே செய்யவும் இல்லை. उर्दू स्कूल्स जो डेवलपमेंट का என்ன ஆயிடுச்சு சார் இது இங்க கரெக்டா. ஆக்சுவலா இங்க பக்கத்துலயே ஒரு இருக்கு, தெரிஞ்சு கேக்குறீங்களான்னு தெரியல. ஆக்சுவலா நான் இப்போ ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். சார் ஒருத்தர் எங்க எம்சி இருக்காரு, ஒரே ஒரு எம்சி தான் இருக்கிறாரு. உருது ஸ்கூல் இருக்குன்றதே கூட்டிட்டு போய் காம்பவுண்ட்லாம் கொடுத்து நாங்க ரெடி பண்ணிருக்கோம். ஈவன் எனக்கு உருது தெரியாது, பட் எல்லாமே ஒன்னா போகணுன்றதெல்லாம். நேதாஜில ஒரு கிராண்ட் எதுனா இருக்குதா சார் இதுக்கு? ஆமா, எம்எல்ஏ ஃபண்ட்ல ஒரு ஸ்கூலுக்கு புது பில்டிங் கொடுத்துருக்கேன். 23 lakhs கொடுத்தேன். ஸோ நம்ம இதில் ஏன்னா எனக்கு நான் சொன்ன மாதிரி தான் பர்சனலாக எனக்குன்னு ஒரு அஜெண்டானா எல்லாம் ஒன்றா போகணும்னா ஒன்றா ஹெல்த்தி சொசைட்டி நல்லா போகணும் தான். ஸோ அந்த இதில் நான் பேஸ் பண்ணி தான் போயிட்டுருக்கேன். எனக்கு இருக்கிறது ஒரே பாலிசி. ஸோ ஆப்போசிட் யாரும் இருக்கிறோம்ல, எல்லாம் ஒன்றா போகணுன்றதுல அந்த இதில் நாங்கள் நிறைய பண்ணிகிட்ருக்கோம். உருது ஸ்கூல் நம்மளது வாணியம்பாடியில் ஒன்று தான் இருக்குது, கவர்மெண்ட் உருது ஸ்கூல். ஸோ அவங்க கண்டுக்கிற மாதிரியும் தெரியல. இப்போது கொடுத்துருக்கிறதும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ஆர்ஜிஎஸ்ல தான் காம்பவுண்ட் வாங்கி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அது ஒரு ஏரியா வந்து பாம்பு வந்துடுது, நிறைய வருது. சின்ன ஸ்கூல் தான், மொத்தமே ஒரு 36 பசங்க தான் படிக்கிறாங்க. உருது ஸ்கூலில் தனியாக உருதுக்குன்னு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் அது ஒன்று தான். ஸோ அதையும் மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி தெரியல. ஸோ இப்போ நாங்கள் அதை ரெடி பண்ணி இப்போ காம்பவுண்ட்லாம் கட்ட சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். ஃபியூச்சர் பிளான் என்ன இருக்குது சார் உருதுக்காக? இதுக்கு வாங்கி ஃபஸ்ட்டு உருது கற்றுக்கிறேங்க. நிச்சயமாக நெக்ஸ்ட் இயர் ஆக்சுவலாக எம்பி எலெக்ஷனுக்குள்ளே உருது கற்றுட்டு உருதுல பேசுகிற மாதிரி இருக்கா. எங்கள் கூட இருக்கிறவங்களும் ஆக்சுவலாக லாங்குவேஜை தமிழாக இருக்கட்டும், நிறைய லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது. ஒவ்வொரு ஊருக்கு போகிறதுக்கு இப்போ ஹிந்தி வேண்டாம்னு சொல்கிறாங்க. உருது தெரிஞ்சால் ஹிந்தி தான் மேனேஜ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஈவன் மோரார்லெஸ் சேம் இல்லையா. ஸோ நார்த் இந்தியாவுக்கு போனோம் அப்படின்னா உருது தெரிஞ்சுதான் நான் போய் மேனேஜ் பண்ணியிருப்பேன். இவங்க வேண்டாம்னு சொல்கிற எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து சார் எல்லா லாங்குவேஜும் எல்லாரும் கற்றுக்கங்க அப்படின்னு தான். ஸோ நம்ம அப்பார்ட் ஃப்ரம் இந்தியா விட்டுட்டு வெளியில் போனோம்னா மேக்ஸிமம் இப்போ யூகே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் அங்கே தான் படித்தேன். வேல்ஸ் இருக்குது, இங்கிலீஷ் இருக்குது. அவங்க யாருமே டிகிரி ஹோல்டர்ஸே கிடையாது. ஸோ எல்லாமே பேசிக் அவங்களுக்கு மதர் டங் இங்கிலீஷ். ஸோ வேல்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க. 2 இதுன்னா +2 முடிச்சவங்க, ஹையர் எஜுகேஷன் முடிச்சவங்க எல்லாமே பார்த்தோம்னா நம்மளோட நல்ல வெல் செட்டில்டு வெல் சேலரி. இப்போ நான் எம்எஸ் முடிச்சுட்டு நான் போய் ஒரு 8 லட்சம் 7 லட்சம் சம்பளம் வாங்குறேன்னா படிச்சிருக்கவே மாட்டார். 12வது தான் படிச்சிருப்பாரு. அவருக்கு 12 லட்சம் 15 லட்சம் நம்ம மணிக்கு, அவங்களுக்கு கிராமில் பவுண்ட்ஸில் இருக்குது பார்த்தோம்னா அந்த இதுதான். ஸோ பேசிக் நம்மளோடது அவங்க லாங்குவேஜ் அவங்கவுங்க விட்டு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு தான். ஸோ தமிழ்னா தமிழோட சேர்த்து அடிஷ்னலாக 3 லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறதுல தப்பு கிடையாது. சும்மா சொல்லிட்டு ஏமாத்தாமல் எல்லா லாங்குவேஜை கற்றுக்கிட்ட பிறகு, ஏன்னா யாரும் பர்சனலாக நம்ம சொல்ல வேண்டான்னு. ஏன்னா இப்போ இருக்கிற கவர்மெண்ட்டில் அவங்களே ஹிந்தி சொல்லித்தராங்க, ஆனால் ஹிந்தியை வேணான்னு சொல்கிறாங்க. பட் पब्लिक ஏமாத்த வேண்டியது இருக்கு. भी उसके कर रहे हैं। ये तकरीबन 100 स्टॉल्स यहाँ पर, कुछ लोग 2-2, 4-4 स्टॉल भी मिला के रख लिए हैं। 100 स्टॉल्स के करीब इन्होंने यहाँ पे नुमाइश के लिए रखा है और सब फुल हैं, कोई खाली नहीं है। तो नाशरीन सारे हिंदुस्तान भर के हैं, दिल्ली के हैं, लखनऊ के हैं, कुछ महाराष्ट्र के हैं, आंध्रा से हैं और ख़ुद तमिलनाडु के भी हैं। तो इसमें सब किस्म की किताबें हैं, अदबी किताबें हैं, बच्चों का लिटरेचर है, दीनी किताबें हैं, सारी किताबें अब जो उर्दू में जितने भी अवेलेबल हैं सारी किताबें यहाँ पर ला कर रखे हैं। तो आज सुबह जब इसका इफ्तिताह हुआ तो लोगों ने बड़ी खुशी का इजहार किया कि आपने अच्छा किया कि सारी किताबें समेट के यहाँ पर ला लिए और सब लोग यहाँ से ख़रीद सकते हैं, ये वो लोग बता रहे थे। तो ये अभी आज 3 तारीख़ है जनवरी की, 11 तारीख़ तक ये चलेगा 9 दिन का। तो 9 दिन भी यहाँ पर किताबों की नुमाइश के साथ हमारे बहुत सारे प्रोग्राम भी हैं। मसलन आज शाम को एक ड्रामा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का गुबारे खातिर जो है ना, उसकी बुनियाद पर बनाया गया, तो वो ड्रामा आज शाम को रखेंगे। तो हर रोज़ कोई ना कोई अदबी और सकाफ़ती प्रोग्राम होगा ताकि लोग जो है दिलचस्पी के साथ आएँ और इस बहाने वो लोग किताबें भी ले जाएँ, इसलिए हम लोग रखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ तो बहुत अच्छा हुआ और उम्मीद करते हैं कि हर रोज़ ऐसा ही रहेगा और कामयाबी के साथ चलेगा। नाशरीन की एक नई चीज़ है, यहाँ ये लोग जो है स्पेशलिस्ट हैं बच्चों के लिटरेचर में, यानी चिल्ड्रंस लिटरेचर जिसे कहा जाता है। तो बहुत सारी किताबें जदीद तक़ाज़ों को पूरा करते हुए उन्होंने बनाया है वो, तो एक नई चीज़ है। और भी आप तलाश करेंगे तो बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी इसमें। पास जो एक मेहमान आए थे, वेलूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत मशहूर VIT है ना, तो VIT के जो फाउंडर हैं और उसके चांसलर भी, उन्होंने बताया वो कि बच्चे जो है आज सोशल मीडिया की तरफ से, हमने एक प्रोग्राम भी रखा है उस सिलसिले में, सोशल मीडिया क्या रहमत है या ज़हमत है। तो बच्चों का दिमाग असल में पढ़ने लिखने की तरफ से हटाया जा रहा है। तो ये किताब मेला इसके लिए एक अहम कोशिश है कि वाकई बच्चों का जहन फिर जो है किताबों की तरफ लाए, इसलिए कि किताबें पढ़ने के बराबर तो हो नहीं सकते। हम लोग 2 मुबाहिसे इस सिलसिले में रखें, एक सोशल मीडिया रहमत है या ज़हमत
और दूसरा एक उन्वान हमने रखा है कि ऑनलाइन तालीम क्या किताबों का मुतबादिल हो सकता है, ये भी हमने रखा है। तो इस पर बड़ी सैर हासिल बहसें होंगी और किताबों का बदल तो कोई नहीं है, ये तो हम बताएंगे उसमें इंशाअल्लाह। वही बच्चों के वालिदैन को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप यहाँ आकर के देखिए, किताबें इतनी अच्छी हैं, ये ले करके बच्चों का जहन आप मबजूल कराइए इसकी तरफ। यानी आप उनको मोबाइल से हटाने की कोशिश करें और आपके पास उसका कोई मुतबादिल नहीं तो कैसे हटेंगे। तो हम उनको बताएंगे कि मुतबादिलात हमारे पास बहुत सारे हैं, तो इसको रख के उनके जहन को आप हटाइए और वो लोग जो है वाकई किताब पढ़ने वाले फिर बने। सिर्फ देख कर अपनी सेहत बिगाड़ के, आँख की बीनाई बिगाड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि बताइए।